Hello students, I am Hanish Bansal. I am your accounts lecturer. ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਟਰਮਸ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ YouTube ਪਲੇਲਿਸਟ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਚੈਪਟਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਸ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਅਕਾਊਂਟਸ 'ਚ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਅਤੇ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ TS ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੁੱਕ ਜਦੋਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਚੈਪਟਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਜ਼ ਏ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ੋ ਦੈਟ ਐਸਟ ਐਂਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਏ ਫਰਮ ਆਰ ਇਕੁਅਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮੈਥੀਮੈਟੀਕਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਟ ਅਤੇ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਫਰਮ ਦੀ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਬੇਸ 'ਤੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਾਂ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਆ ਦੇਖੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਪਲੱਸ ਕੈਪੀਟਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਸਮਝਾਊਂਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੰਬਰ 1, ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਦਿੰਦਾ, ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਲਗਾ ਲਓ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰਾਕੇਸ਼ ਹੈ। ਰਾਕੇਸ਼ ਕਮੈਂਸ ਜਾਂ ਕਮੈਂਸ ਵਰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਸਟਾਰਟਡ ਹਿਜ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ with cash ₹20,000। चल 2 लाख ला लो, 2 लाख। ठीक है, तो और सिचुएशन दे रखी है परचेज फर्नीचर for ₹500 in cash। थर्ड सिचुएशन दे रखी है परचेज गुड्स for ₹1,000 in cash। और दे रखी है परचेज गुड्स for ₹2,000 on credit। और दे रखी है सोल्ड गुड्स costing ₹500 on credit for ₹4,000। ठीक है, राकेश withdraw 2,000 for his personal use। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੋਏਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਟ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ, ਫਾਰਮੈਟ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ठीक है, इस तरीके का फॉर्मेट बनता। ठीक है,
बस स्केल ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵੱਜ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫੋਰਮੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ, ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਐਸੈਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਐਸੈਟਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੈਸ਼, ਬੈਂਕ, ਫਰਨੀਚਰ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਐਸੈਟਸ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਪਲੱਸ ਕੈਪੀਟਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ, ਹੁਣ ਆਹ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੀਰੀਅਲ ਇੱਥੇ ਆਹ ਲਾਈਨ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਹ ਲਿਖੋ ਇੱਥੇ ਰਕੇਸ਼ ਸਟਾਰਟਡ, ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਟਾਰਟਡ ਹਿਜ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿਦ ਕੈਸ਼, ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਾਈਨ ਉਰੇ ਲਿਖ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਿਆ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲਾਈਨ ਲਿਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਟਾਰਟਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿਦ ਕੈਸ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਸ ਉਰੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੈਪੀਟਲ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਸ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਗੱਲੇ 'ਚ ਕੀ ਆ ਗਏ, ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ, ਅਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੈਪੀਟਲ ਪੂੰਜੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਪੂੰਜੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਕਿਉਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਪਾਰਟਨਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਹੈ ਓਨਰ ਹੈ ਉਹ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ ਜਾਂ ਓਨਰ ਨੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ ਵਾਪਸ, ਚਾਹੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਐਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ, ਪਰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਟੋਟਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਸ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਟੋਟਲ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਸ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖੋ ਪਰਚੇਜ਼ ਫਰਨੀਚਰ ₹4,500 ਇਨ ਕੈਸ਼, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰਨੀਚਰ ਖਰੀਦਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਰਨੀਚਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਫਰਨੀਚਰ ਵਰਡ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਗੁਡਸ, ਤਾਂ ਗੁਡਸ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟੋਕ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਫਰਨੀਚਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਫਰਨੀਚਰ ਖਰੀਦਿਆ, ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਕੀ ਆਇਆ, ਫਰਨੀਚਰ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਫਰਨੀਚਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਐਸੈਟ ਸਾਈਡ ਲਿਖਾਂ, ਫਰਨੀਚਰ ਐਸੈਟ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਫਰਨੀਚਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ 500 ਰੁਪਇਆ। ਹੁਣ ਫਰਨੀਚਰ ਐ ਹਵਾ 'ਚ ਖਰੀਦਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਫਰਨੀਚਰ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਆਊਗਾ ਇੱਥੇ ਕੈਸ਼ 500 ਰੁਪਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗਾ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹਦਾ ਟੋਟਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜੂਗਾ, ਇੰਨੇ ਰੁਪਈਸ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਲਿਖ ਦੋਗੇ। ਇਹ ਟੋਟਲ ਕਰਨਾ ਹਰ ਸਟੈਪ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਂਟਰੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਲਿਖਣਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਟੋਟਲ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਸ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਉੱਪਰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਸ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਪਰਚੇਜ਼ ਗੁਡਸ ਫੋਰ ਕੈਸ਼। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੁਡਸ ਫਿਰ ਖਰੀਦੀ, ਹੁਣ ਗੁਡਸ ਵਰਡ ਹੈ, ਗੁਡਸ ਵਰਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਟੋਕ ਨਾਲ। ਗੁਡਸ ਵਰਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਟੋਕ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਸਟੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜੂਗਾ ਉਰੇ ਆ ਜੂਗਾ 2000 ਰੁਪਈਸ। ਹੁਣ ਕਿਆ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਘਟੇ ਹੋਣੇ, ਤਾਂ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਟੋਟਲ ਲਗਾ ਲਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਟੋਟਲ ਆ ਜੂਗਾ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ 197,500, ਇੱਥੇ ਆ ਜੂਗਾ 500 ਰੁਪਇਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਜੂਗਾ 2000, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜੂਗਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਸ। ਆ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਇਹ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰਚੇਜ਼ ਗੁਡਸ ਫॉर 2000 ਔਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ ਉਰੇ ਲਿਖਿਆ, ਪਰਚੇਜ਼ ਗੁਡਸ ਫॉर ₹2000 ਔਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਹੁਣ ਉਧਾਰ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦੀ, ਤਾਂ ਸਟੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਸਟੋਕ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ 2000 ਰੁਪਇਆ ਆਇਆ, ਸਟੋਕ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਧਾਰ ਖਰੀਦਿਆ। ਹੁਣ ਜਦ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਧਾਰ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ ਕਿ ਲੈਣੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ,
जब वो चीज़ खरीदी है तो ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਉਧਾਰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗੀ, ਆਪਣੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਬਣ ਜੂਗੀ। ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਚਾਹੇ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਲਿਖ ਲਓ ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਲਿਖ ਲਓ। ਇੱਥੇ 2000 ਰੁਪਏ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਟੋਟਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇੱਥੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ 4000 ਰੁਪੀज़ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ 2000 ਰੁਪੀज़ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਇੱਥੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪੀज़ ਆ ਜਾਏਗਾ। ठीक है, आ थोड़ा क्लीयर हो गया होना। आगे देखियो स्टूडेंट्स, फिर अगे की पॉइंट लिखा हुआ है, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 2500 ऑन क्रेडिट फॉर 4000। कहते 2500 वाली चीज़ 4000 च बेची उधार। इतने लिखो सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 2500 रुपया ऑन क्रेडिट 4000, मतलब 2500 रुपये की चीज़ 4000 च बेची पर उधार बेची। तो हुण देखो, हुण तुसीं ये देखो अपनी दुकान च माल किन्ना घटूगा। आपां बेचीए तो 2500 का समान ही बेचा, आपां तां अपने लिए तो 2500 का समान बेचा, पर आपां उधार बेची। आपां हुण वो बंदे तो पैसे लैने होणगे, जे अगर उधार बेचीए तो उधार बेचदी पैसे लैने हुंदे उन्होंने की बोलते आपां डेटर्स बोलते हैं। की बोलते हैं उन्हें डेटर्स। तो 2500 फिर उन्होंने पैसे किन्ने लैने अपने 4000 रुपया। किन्ने पैसे लैने 4000। जिहड़ा फायदा हुंदा है उन्होंने आप किहदे विच ऐड कर देने कैपिटल दे विच। अगर मान लो 4000 की चीज़ 2500 च बेची हुंदी तो नुकसान हुंदा तो इत्थे माइनस कर देंगे, तो याद रखना। फिर इहदा टोटल ला देंगे आपां, इत्थे कोई इफेक्ट नहीं पिया। इत्थे 500 रुपया, इत्थे किन्ना आ जाऊगा 1500, इत्थे 4000, इत्थे 2000, कोई इफेक्ट नहीं पिया। इत्थे आ जाऊगा इन्ना। क्लीयर है गल। फिर 6वां पॉइंट देखो, विड्रॉ कराया परसनल यूज़ वास्ते। विड्रॉ कराया परसनल यूज़ वास्ते का मतलब पर्सनल यूज़ किया ड्राइंग्स, परसनल यूज़ किया ड्राइंग का। ड्राइंग तो इफेक्ट की जगह बंदा कैश से कैपिटल च इफेक्ट पाना होंगे। तो 2000 रुपया उरे माइनस करता तो उरे आ जाऊगा 195,500, उरे आ जाऊगा 500 रुपया। इत्थे कोई इफेक्ट नहीं पिया। इत्थे आ जाओ 1500 रुपया, इत्थे आ जाओ 4000 रुपया, इत्थे आ जाओ 2000 रुपया, इत्थे आ जाऊगा इन्ना। ठीक है, 2,15,000। फिर अगे की करना होंदा, अपने बैलेंस शीट बनानी होंदी है। अगे की बनाना होंदा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट दे विच इस तरीके नाल होंदा, जिहड़ी लाइबिलिटी ते कैपिटल होंदी है आपां इधर लिख दिंदे आ। कैपिटल दे साइड ते किन्ना टोटल है 2,15,000 रुपया। लाइबिलिटी किन्नी है मतलब 2000 रुपया। फिर इहदा टोटल करांगे तो किन्ना आ जाऊगा, ये आ जाऊगा 2000 रुपया, इन्ना आ जाऊगा। ये इन्ना आ जाऊगा। ठीक है, 2,35,000 रुपया, 2,35,000 रुपया आ जाऊगा। फिर इहदा इधर विच लिखांगे कैश। अपने कैश का हैड लिख लिया, फर्नीचर जिन्ने भी हैड खुलते हैं आप उन्हें लिख दें। कैश दे विच लिखा हुआ 195,500, इस लिखा हुआ 500। फिर आ जाऊगा स्टॉक। स्टॉक दे विच कितना लिखा है 1500 रुपया। तो डेटर्स दे विच कितना आ गया 4000। फिर इतना टोटल करोगे तो आ जाऊगा इन्ना टोटल करोगे तो यह आ जाऊगा। देखो इत्थे 96 के 4 1 लाख। ठीक है, तो इत्थे आ जाऊगा देखो 96 2 लाख ते 2,15,000 रुपया। हुण तुसीं देखो ये बराबर नहीं है तो मतलब इत्थे कुछ गड़बड़ है। हुण देखो मैं जानबूझ के इत्थे गड़बड़ की है, मैं इसलिए की है तुहानूं समझाने वास्ते। कहते आ देखो हुण परसनल यूज़ वास्ते 2000 रुपये मैं उरे पाता पर उरे नहीं पाया, तो उरे 2000 रुपया उरे लिखना। तो उरे किन्ना, क्योंकि आप टोटल हम ना दोवां बराबर होना चाहिए। तो इत्थे 2000 रुपये माइनस किया तो किन्ना आ जाऊगा, इत्थे 199
500 आ जाऊगा। इत्थे 199,500 लिखांगे आपां और 199,500 लिखांगे तो ਇਹਦਾ टोटल करांगे तो इत्थे आ जाए 2,15,000। ਹੁਣ देखो दोवां ਦਾ टोटल बराबर हो गया। मतलब कहने का मतलब यह है कि इन्हों का टोटल तो इन्हों टोटल की होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, जेकर कितने गड़बड़ है तो इत्थे टोटल बराबर नहीं होंदा तो इसका मतलब किते ना किते थोड़ी मिसटेक है। हुण मैं इत्थे मैं तुहानूं दस्सिया कि मिसटेक ए सीगी जिस वजह नाल तुहानूं टोटल बराबर नहीं आ रहा सीगा। तो मैं तुहानूं दसता इत्थों आ पता लग जांदा अपना सवाल सही है। जो अपना इत्थे बराबर आ गया अपना सवाल सही है। समझ आई गल। जेकर कोई इत्थे टोटल बराबर नहीं आता तो इसका मतलब किते ना किते कोई एंट्री मिसटेक की है। समझ आ रही है गल। आह चीज़ इंपोर्टेंट है बंदे क्लीयर कट समझ आ गया होना तुहानूं। अगे देखते हैं आप। देखो तुहाडे सामने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स दित्तियां हुई ने पेज नंबर 5.18 तुहाडी बुक तुसीं देख लिओ। चैप्टर के पिछे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होएगी तो खोल लो। हुण तुहानूं आ सिचुएशन दे रखी है। देखो क्वेश्चन दे रखा है कि काउंटिंग इक्वेशन बना के दिखाओ जिते विच बिजनेस स्टार्ट किया 45,000 नाल। ठीक है, बैंक विच खाता खुलाया डिपोजिट कराता अपने पैसे 4500 तो आपने चीज़ खरीद ली MS सन एंड कंपनी फॉर 11,200। हुण तुहानूं एक गल तो समझाना। देखो गुड्स खरीदी MS सन एंड कंपनी तो इत्थे किते लिखिया नहीं कि कैश नाल खरीदी है या कुछ। जेकर किसी का नाम मैंशन होवे और ये ना लिखा हो कि कैश ना खरीदे या कुछ तो आप मनांगे कि उधार है, उधार खरीदी है। अगर नाम भी मैंशन हो नाल कैश भी लिखा हो इन कैश तो मनांगे कि आप कोई चीज़ कैश नाल खरीदी है। जे अगर नाम मैंशन ना हो ना कैश मैंशन हो, कैश भी नहीं लिखा ना नाम मैंशन है तो भी आप इन्हूं की मनांगे कैश मनांगे। समझ आ गई। पहली एंट्री दे विच तो सिर्फ कि कैपिटल इंट्रोड्यूस की है कैपिटल कैश तो कैपिटल च। दूजे की है बैंक च पैसे आ जाएंगे कैश चो घट जाएंगे। तीसरे च उधार खरीदी है एंट्री। तो क्वेश्चन करके दिखाना स्टूडेंट्स। चलो देखते आप कॉपी तो करके दिखाना करना। देखो स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन किमें होगा उवें तुसी फॉर्मैट बना लो जिवें मैं तुहानूं दस्सिया। फॉर्मैट इधर लिखना है सीरियल नंबर, इत्थे लिखनी है ट्रांजैक्शन, इत्थे एसेट्स से लाइबिलिटी। ठीक है, तो उसके बाद इत्थे सीरियल नंबर आप लिख लिया ट्रांजैक्शन। जो बहुत सारी ट्रांजैक्शन बहुत सारी एंट्रियां होंगी फिर इस तरीके नाल नहीं बनेगा, वो दूसरे लोट कॉपी करनी पे करेगी। ठीक है, ये एसेट्स इत्थे लाइबिलिटी ये कैपिटल। वो मैं पहले दस्या सीगा कि पहली जी ट्रांजैक्शन है लिख लाँगे कि लिखा हुआ है स्टार्टड। तुसी अपनी कॉपी तो नोट करते रहो सारे स्टूडेंट्स। स्टार्टड बिजनेस विद कैश, बिजनेस स्टार्ट किया कैश नाल तो की एंट्री पऊगी उत्थे कैश दे विच पैसा आ गया तो 45,000 रुपया कैश दे विच लिख देंगे तो उत्थे कैपिटल दे विच लिख देंगे किन्ने रुपये 45,000 रुपया। समझ आइए। इत्थे फिर टोटल कर देंगे 45,000 का, उधर भी टोटल कर देंगे 45,000 रुपये का। फिर दूसरी एंट्री आपने की किया ओपन डे बैंक अकाउंट विद डिपोजिट 4500 बैंक दे विच 4500 रुपया जमा कराया तो हम मतलब पैसे ना दिते होणगे पैसा घट जूगा 4500 रुपया बैंक ये आ जूगा तो बैंक दे विच पैसे आ गए 4500 रुपया। हम देखो इत्थे कितना आ जू 4,500 इत्थे कितना आ जूगा 4500 इत्थे कोई इफेक्ट नहीं पिया तो इत्थे कितना आ जूगा 45,000 रुपया। सिंपल जी गल है। अगे देखो तीसरा पॉइंट कहते आपने कोई चीज़ खरीदी बॉट गुड्स फ्रॉम MS सन एंड कंपनी फॉर रुपीज़ 11,200 उधार खरीदी तो मतलब उधार पैसे तो आप दिते नहीं ना पैसे तो लैन देन होए ने इसलिए इत्थे कोई इफेक्ट नहीं पैंदा हैगा। बैंक का भी यदा कोई लेना देना नहीं तो मतलब कोई चीज़ आई तो स्टॉक आया होगा तो स्टॉक किन्ने का आया होगा 11,200। हुण चीज़ खरीदी आ उधार तो लाइबिलिटी का रेट होगी 11,200 रुपया हो रहा लिखना है। और किन्ना आ जूगा 40,500 और किन्ना आ जू 4500
और 11,200 और 11,200 और एक कितना आ जाऊगा 45,000 का आह। फिर अगे बैलेंस शीट बनाओगे। बैलेंस शीट थोड़ा मैं दसिया ही है। आ साइड अपना किधर राइट हैंड साइड लिख दो, लैफ्ट हैंड साइड लिख दो, फिर टोटल करके लिख लो। ठीक है, जो मैं उरी टोटल करा तो यदा बन जाता 56,200। इन्ना टोटल करोगे, यदा भी टोटल करोगे तो 56,200 आ जाता है। तो थोड़ा क्वेश्चन सही है। तो स्टूडेंट्स क्लीयर हो गया। हम स्टूडेंट्स दूसरा क्वेश्चन देखो, अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है। ये गोपीनाथ आपाइया आप बिजनेस स्टार्ट किया कैश नाल, फिर अपने गुड्स परचेज कीतियां, शाम को गुड्स परचेज कीतियां। अपने हमने देखो इतने शाम वर्ड लिखा हुआ है, कैश तो नहीं लिखा था, मतलब उधार खरीदी होगी। समझ आई। गुड्स सोल्ड की अपन सोहन नू कॉस्टिंग 1800 रुपये। अगे देखो इधर लिखा हुआ है, देखो किन्ने रुपए की 1500 रुपये की, मतलब 1800 वाली चीज़ किन्ने की बेची अपने 1500 रुपये की। 1800 की चीज़ किन्ने की बेची है 1500 की, मतलब घाटे च बेची है, वो भी उधार बेची है। अगली एंट्री कह रहे हैं गोपीनाथ विड्रॉ फ्रॉम बैंक बिजनेस, मतलब ड्राइंग्स कैश चो कट जूगा कैपिटल चो कट जूगा। तो ये क्वेश्चन कि होगा, देखो देखो स्टूडेंट्स ओमें फॉर्मेट बना लो। फॉर्मेट जिवें मैं तुहानूं दस्सिया, इत्थे की लिखना तुसी सीरीयल नंबर, इत्थे की लिखना ट्रांजैक्शन, इत्थे की लिखना तुसी जो भी आंदा रहेगा ट्रांजैक्शन के हिसाब नाल। इत्थे उपर एसेट लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। हुण ट्रांजैक्शन दे विच देखो, सब तो पहली ट्रांजैक्शन पहला की लिखा हुआ है कि गोपीनाथ ने स्टार्ट किया। अपनी कॉपी पर नोट करते रहो सारे। गोपीनाथ ने स्टार्ट किया बिजनेस विद कैश। ठीक है, कैश दे विच तां इत्थे कैश की एंट्री होगी, किन्ने रुपये ना स्टार्ट किया 25,000 रुपये ना। तो इत्थे कैपिटल दे विच पा दोगे, इत्थे किन्ना आ जाऊगा 25,000 रुपया। तो इन्ना इत्थे आ जाऊगा 25,000 रुपया, 25,000 रुपया। अगे देखो दूसरा पॉइंट, परचेज गुड्स फ्रॉम शाम। शाम तो अपन की उधार चीज़ खरीदी, शाम तो उधार चीज़ खरीदी, तो इत्थे की लिखांगे स्टॉक। उधार चीज़ खरीदी गुड्स वर्ड है तो स्टॉक वर्ड यूज़ करांगे। तो उधार इतने स्टॉक आ गया, किन्ने रुपये का स्टॉक आ गया 10,000 रुपये का। उधार चीज़ खरीदी है तो हुण तुहानूं पता है जो उधार चीज़ खरीदे तो लाइबिलिटी क्रिएट होंदी है। तो लाइबिलिटी दे विच 10,000 रुपया बिल्कुल वो डिटो सामने लिखना है। ठीक है, फिर यदा टोटल कर देंगे। इत्थे किन्ना आ जाऊ 25,000 रुपया, इत्थे किन्ना आ जाऊगा 10,000 रुपया, इत्थे किन्ना आ जाऊ 10,000, इत्थे किन्ना आ जाऊगा 25,000 रुपया। क्लीयर है। अगे देखो अपन ने सोल्ड की गुड्स, इत्थे लिखोगे तीसरी एंट्री सोल्ड गुड्स टू सोहन कॉस्टिंग 1800। तो किन्ने दी बेची अपने 1500 की, मतलब 1800 की चीज़ 1500 की बिकी। मतलब दुकान च तो 1800 का माल गया पर बेची 1500 की, वो भी उधार। तो उधार बेची है तो डेटर क्रिएट हो जाएंगे, लैने बंदे तो पैसे किन्ने ने 1500। तो 300 रुपये का नुकसान है। तुहानूं दस्सिया सी जो नुकसान फायदा किहदे विच एडजस्ट करना होंदा अपने कैपिटल दे विच। तो फिर यदा टोटल कर लोगे सारिਆਂ ਦਾ। इत्थे किन्ना आ जाऊ, इत्थे कोई इफेक्ट नहीं पिया तो इत्थे 25,000, इत्थे किन्ना आ जाऊगा 8200, इत्थे 1500, इत्थे 10,000, इत्थे आ जाऊगा 24,700 रुपया। अगे देखो स्टूडेंट्स, अगे कहते कि गोपीनाथ ने की किया विड्रॉ कराया फ्रॉम बिजनेस चो पैसे उन्हें कढ़ा ले। तो 5,000 रुपया कढ़ा लिया। 5,000 रुपया कि इफेक्ट हो जाऊगा, कैश चो कट जूगा 5,000 रुपया, चो कट जूगा थोड़ा कैपिटल। ताकि इत्थे किन्ना आ जाऊगा 20,000, इत्थे आ जाऊ 8200, इत्थे आ जाऊ 1500, फिर 10,000, इत्थे आ जाऊगा 19,700
700 रुपया। फिर तुसी की करोगे, बैलेंस शीट बनाओगे, फिर ਉਹਦਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਐਸੈਟਸ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਲਿਖੋਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ, ਫਿਰ ਟੋਟਲ ਕਰੋਗੇ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਕਰੋਗੇ, ਦੇਖੋ 20,000 ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ 29,700 रुपया। 28,000 तो ये बन गया 29,700 आ गया, ये भी 29,700 का मतलब अपना क्वेश्चन सही है, दोनों पासे बराबर। तो आई होप तुम सारे क्लीयर हो गया होना ये क्वेश्चन। अगे देखते आप, देखो स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन काउंटिंग इक्वेशन बनानी है। कहते बिजनेस स्टार्ट किया कैश नाल 50,000, सैलरी पे की। जो भी आप कोई पेमेंट करते हैं, सैलरी वेजिस रेंट पे करते हैं, तो वह इफैक्ट कैश तो कैपिटल चो घटता है। वेजिस आउटस्टैंडिंग 200 रुपया, जो आउटस्टैंडिंग हो कैश नाल कोई लेना देना नहीं है। आउटस्टैंडिंग का मतलब लाइबिलिटी होंगी है, लाइबिलिटी तो कैपिटल लाइबिलिटी जोड़ दोगे, कैपिटल चो घटा दोगे। इंटरस्ट ड्यू बट नोट पेड, यदा मतलब भी आउटस्टैंडिंग होंगे, लाइबिलिटी जो जोड़ दोगे, कैपिटल घटा दोगे। रेंट पेड इन एडवांस, पैसे आ गए पर रेंट की बन जूगी अपनी एसेट बन जूगी। एडवांस मतलब प्रीपेड। क्लीयर है गल। हम ये रिलेटेड आप क्वेश्चन करते हैं, आप इसे मैं सोल्व करके दिखाना तुम्हें कि मैं होएगा। देखो स्टूडेंट्स पहला ओमी फॉर्मेट बना लो। इत्थे की लिखना सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, एसेट्स, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। क्या लिख लिया? पर सारा दिख रहा होना। फिर ओमी की करना अपने सीरियल नंबर च 1 लिखना है, तब इसे लिखना है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। हम बिजनेस स्टार्ट किया तो कैश के एंट्री पा दोगे 50,000 रुपया, तो उधर कैपिटल च पा दोगे 50,000 रुपया। तो फिर यदा टोटल करोगे, इत्थे भी 50,000 आ जाऊगा, इत्थे भी 50,000 आ जाएगा। फिर दूसरी एंट्री लिखोगे सैलरी पेड, सैलरीज पेड। हम सैलरी पेड की किन्ने रुपए की पे की अपने 2,000 रुपया। जो पैसे घट गए पर नाल कोई भी डायरैक्ट चीज़ आप पे कर रहे हैं, सैलरी इलैक्ट्रिक कुछ भी पे कर रहे हैं, तो कैश तो कैपिटल चो हटाना होंगे। तो इत्थे कितना आ जाऊगा 48,000, इत्थे भी कितना आ जाऊगा 48,000 रुपया। तीसरा पॉइंट है वेजेस आउटस्टैंडिंग, वेजेस आउटस्टैंडिंग। हम वेजेस आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी का कंसर्न होंगे। लाइबिलिटी के किन्ने रुपये 200 रुपये लिख दोगे, तो लाइबिलिटी जो कैपिटल घटा देंगे, इतने आ जाए 200 रुपया, इतने आ जाऊगा 47,800 रुपया। इतने कोई इफेक्ट नहीं पाया 48,000। चौथा पॉइंट की है इंटरस्ट ड्यू बट नॉट पेड। ये भी आउटस्टैंडिंग होंगी है, इंटरस्ट ड्यू बट नॉट पेड। किन्ने रुपये ये कैश नाल कोई लेना देना नहीं, इसलिए इत्थे कोई इफेक्ट नहीं, पर लाइबिलिटी बच जूगी 100 रुपया। फिर उत्थे कैपिटल दे विचों घटा दोगे, इत्थे आ जाऊ 300, इत्थे आ जाऊगा 47,700 रुपया। तो इत्थे कोई इफेक्ट नहीं, मतलब 48,000 लिख देंगे। पंजवां पॉइंट इत्थे आ जाऊगा रेंट पेड इन एडवांस, एडवांस रेंट पे किया आप। तो हम देखो एडवांस रेंट पे करांगे तो प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट का मतलब कि होगा 150 रुपया खड़े हो जाएंगे, पर पैसे आप एडवांस आप पे किया तो कैश अपना की हो जाएगा घट जाऊगा, 150 रुपया और घटा देंगे। एडवांस पे किए तो कैश घट जूगा, तो एसेट बन जूगी अपनी। तो फिर टोटल करोगे तो इत्थे आ जाऊगा 47,850।
ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ 150 ਰੁਪਇਆ, ਇੱਥੇ 300, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਲਿਖਾਂਗੇ 47,700। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਟੋਟਲ ਕਰੋਗੇ ਇੱਥੇ 48,000 ਆ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਥੇ 48,000 ਆਊਗਾ, ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈ ਹੋਪ ਇਹ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਗਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਸਪਰਟ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਲਾਸ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਕਲਾਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ, ਕੰਸੈਪਟ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਲਾਸਾਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੋ। ਜੈ ਹਿੰਦ।